ऑप्शन आता है। ओके, साईराम मैम। साई राम। चलो देख लेते हैं, चलिए लेटेस्ट। मैम हो गई। शैल वी स्टार्ट? ओके। यस मैम। सायरा, सायरम बेटा। ओके, क्योंकि चैप्टर है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट बिफोर समर ब्रेक. ओके, so let us straight away come to the question answers. Okay, if you have any doubt you can ask me. I am presenting my screen now. Screen is visible, beta? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Thank you. Okay, my humble salutations at the lotus feet of Baba. These are our book exercise questions, and I have also included extra questions. Okay, now the first question was, see, draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? Now we are living in groups where, like, you are living in the Raghugarh, somebody is living in Sada, I am living in Gale. Okay, so we people, those who are living, those who are the resident of these places, they used to celebrate many festivals together. Okay, few names are given over here. See, festivals shared by different regional and religious communities are, like, these are national festivals. Okay, so these are celebrated by all the communities and regions. You can add many more which you all celebrate together. Like Diwali you celebrate together. Okay, Holi you celebrate together. Krishna Janmashtami. Then other festival, other than that also you can include all the festivals, and you can write that these all festivals are also celebrated together in our locality. Okay, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो. ये केवल मैंने नेशनल फेस्टिवल्स ही डाले हैं. इसके अलावा आप इसमें ऐड करेंगे, करना चाहें तो, कि हमारे कॉलोनी में, हमारे कम्युनिटीज में, हमारे एरिया में और भी फेस्टिवल साथ में मिलकर हम सेलिब्रेट करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो ये 3 नेशनल फेस्टिवल्स के नाम हैं. आप रिलीजियस फेस्टिवल्स भी ले सकते हैं. ठीक, तो उसमें आप सारे फेस्टिवल्स के नाम डाल सकते हो. लाइक रक्षाबंधन इज कमिंग एंड वी पीपल सेलिब्रेट रक्षाबंधन विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है मैम इस बार तो किसी के साथ रक्षाबंधन ही नहीं मना पाएंगे, अभी कोरोना वायरस चल रहा है. तो उससे क्या हुआ, है ना, रिश्ते तो मन से जुड़ते हैं. ठीक, बहन के नाम की राखी आप खुद भी बनाकर पहन सकते हो कि उसने भेजी है. ऐसे व्हाट्सएप पे राखी भेजेंगे. मेरी बहन तो मेरे घर पर ही है. हाँ ठीक है, जिसकी बहनें हैं वो लकी हैं. जिसकी बहनें दूर हैं या भैया दूर हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दुख वाली बात है, क्योंकि इसी समय सब मिलते जुलते हैं. वो दूर से कुरियर से भेज सकते हैं. हाँ, yes. Now is it okay? Question is understood by all? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Coming to the next one. What do you think living in India with its rich heritage? एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए. ये पिछली वाली, ये see. Okay, you can use your own language also, no problem at all. आपको जैसा समझा, you can write in your own words. ठीक है, shall I proceed, बेटा? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay.
What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to our life? अब हमने पढ़ा था कि there is diversity in the country. We know that we people speak different languages, there are different types of clothes, and we used to follow different religions also. Many more diversities are there according to culture, custom, traditions. Okay, so many diversity we can see in India. So these diversity, what do they add in our life? अगर ये diversity है तो हमारे जीवन में इससे क्या चेंज आता है या क्या चीजें ऐड होती हैं? क्या ऐड होती है? Ma'am, what is the meaning of heritage? हेरिटेज जो विरासत को बोलते हैं बेटा, जो सदियों से चली आ रही है, हमारे पुरखों के जमाने की, हमारे जो दादा परदादा है उनके जमाने से जो चीजें चली आ रही है उसको बोलते हैं हेरिटेज, जिसको हमने संभाल के रखा है। वो कस्टम्स हो सकते हैं, वो ट्रेडिशंस हो सकते हैं, वो हमारा कल्चर हो सकता है, वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मैम अब आ रही है। आ रही है? चलो। यस मैम। So these are the things of diversities. We know that people of different regions, they used to cook different types of food and dishes. They used to wear different types of clothes also. Okay, they follow different culture, customs and traditions also. Now these are the variations. What we have read in the first chapter about diversity, these are all things. Now what these things add to our life? Ma'am, I don't understand the question. हमारे देश में जो अलग अलग चीजें हैं जिसको हमने डाइवर्सिटी बोला है, डाइवर्सिटी आपको समझ में आया था कि डाइवर्सिटी है? पीपल हियर बिलोंग टू वेरियस रिलीजन्स, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म हैं, ठीक है, ये डाइवर्सिटी है। वी पीपल स्पीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ये डाइवर्सिटी है, दिस इज डाइवर्सिटी, एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, डाइवर्सिटी। We eat different things according to our geographical conditions and availability of the things. Among other diversities, there are so many things like our culture, custom, traditions. Okay, these are all included in the diversity. ये हमने पढ़ा था, ठीक है। कोई डार्क है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। These are all examples of diversity. नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपकी कंट्री में ये डाइवर्सिटी है, इफ यू आर लिविंग इन बिटवीन द डाइवर्सिटी, व्हाट डज दिस डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ? आपको इससे क्या फायदा होता है? अगर डाइवर्सिटी है तो आपकी लाइफ में इससे क्या फायदा होगा? व्हाट डज इट ऐड टू योर लाइफ? मैम we know her which who यस, गुड। मैम हम उनका कल्चर पता कर सकते हैं कि वो कैसे रहते हैं। हाँ, वेरी गुड। वी कम टू नो अबाउट देयर कस्टम्स, कल्चर्स, रिलीजन, ओके, ट्रेडिशंस। हम उन सब चीजों के बारे में जानते हैं जिनको हमको जानना चाहिए। मतलब जो हमारे घरों में तो नहीं होता है बट दूसरों के घरों में होता है, उनके बारे में भी उनको नॉलेज मिलती है ना। अगर कुकिंग हैबिट्स को अगर देखते हैं तो अगर हमारे फ्रेंड दूसरे कल्चर से बिलोंग करता है, वी कम टू नो अबाउट देयर फूड हैबिट्स ऑल्सो, we come to know about their languages also, we come to know about their clothes also. Okay, the way they used to follow any culture, custom, tradition, or they used to celebrate any festivals. So we learn new things due to this diversity. ठीक है, अगर ये डाइवर्सिटी नहीं होती तो हमें कुछ नया पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में है, इसके बावजूद वी पीपल लिव टुगेदर अंडर वन नेशन वन फ्लैग। एक ही फ्लैग के नीचे इंडिया नाम की कंट्री में हम सब मिलजुल कर रहते हैं एंड वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स ऑफ अदर्स टू। सो वी नो न्यू थिंग्स, वी लर्न न्यू थिंग्स। क्या न्यू थिंग्स हम लर्न करते हैं? उनके कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं, उनकी लैंग्वेजेस के लिए जानते हैं। कई बार आप देखोगे कि फ्रेंड्स एक दूसरे के घर की लैंग्वेजेस को समझते भी हैं एंड दे यूज टू स्पीक दैट आल्सो, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आंटी जो बोल रही हैं उनके घर में जो लैंग्वेज होती है उसको सीख लें।
थोड़ा थोड़ा, और जब भी जाते हैं तो दे यूज टू टॉक इन दैट सेम लैंग्वेज. तो this way we used to learn many more new things about food, about religion, about customs, about languages. Okay, तो इससे क्या होता है, हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है, हम नॉलेजेबल बनते हैं, वी आर अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड वी यूनाइट टुगेदर. दूसरा हमसे अलग है, उसके बावजूद भी वो हमारा फ्रेंड है. दैट मीन्स डाइवर्सिटी हमको यूनाइटेड भी रखती है, क्योंकि हमको डिफरेंट चीजें पसंद आती हैं. दैट इज वाई डाइवर्सिटी यूनाइट करने में भी हमको हेल्पफुल है. ओके, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नाउ? Yes, Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Coming to the next one, a big one. We will solve this question bit by bit. कॉपी में हाँ. Okay, you can make part of it. Okay, you can bifurcate the question. You can divide the question separately. Okay. See, do मैम इसे भी कॉपी में लिखना है क्या? मैम हम इसको पूरा भी लिख सकते हैं क्या? पूरा भी लिख सकते हैं. Do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? Let us take first part of this question. Okay, the question is, what do you think? ये जो unity in diversity इंडिया के लिए कहा जाता है, क्या ये बिल्कुल सही है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, इंडिया के बारे में बताने के लिए कि हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री? क्या ये बिल्कुल सही है? अगर सही है तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ एनीवन, आई हैव रिटन द आंसर आल्सो, but if you wish you can describe about it. Anybody? No? Let us see. Yes, I believe unity in diversity is an appropriate term to describe India. इंडिया को इसी चीज से बताया जा सकता है. इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे डाइवर्सिटी भरमार में है, बहुत ज्यादा है. यहाँ पे डाइवर्सिटी हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, तो इसलिए इंडिया के लिए ये अप्रोप्रिएट टर्म है, और ये टर्म नेहरू जी ने फ्रेम की थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, ही कॉइंड दिस फ्रेज. Diversity means India is a large country and people of different parts follow different faiths, speak various languages, wear and eat differently. This shows that India has a diversity. ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है? बस हमने ये समझा है, फेथ्स को फॉलो करना, लैंग्वेजेस अलग अलग बोलना, डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहनना, अलग अलग फूड हैबिट्स मेंटेन करना. दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी. व्हाट इज यूनिटी? डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, एज इंडियंस वी आर वन. हमको पता है कि हम इस देश में अलग अलग राज्यों में रहते हैं और अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं, हमारे रिलीजन के हिसाब से और हमारे कल्चर के हिसाब से. ठीक है, इसके बावजूद भी हमसे अगर कोई बाहर का व्यक्ति पूछता है कि आप कौन हैं, तो व्हाट इज आवर आंसर? वी आर इंडियंस. सो इंडियंस कहना अपने आप में बड़ी बात है, ये हमारी यूनिटी को शो करता है. दिस शोज आवर यूनिटी. बीइंग डाइवर्सिटी, बीइंग देयर इज डाइवर्सिटी इन द कंट्री, वी थिंक दैट वी आर इंडियंस, वी आर वन. तो ये बताता है कि हम यूनाइटेड हैं. As an Indian, we are no more a Gujarati or a Bengali. ये तो छोटे छोटे पार्ट हैं, ये हम स्टेट वाइज जब रहते हैं तब बताते हैं. लेकिन अगर हम बाहर की कंट्री के लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, दैट टाइम वी टेल देम दैट वी आर इंडियंस, वी बिलोंग टू इंडिया. We celebrate the national days with equal zeal. Now, when you celebrate 26 January, that is Republic Day, then Independence Day, Gandhi Jayanti, that time the whole country celebrate these festivals with great zeal. Zeal means enthusiasm, जोश के साथ में. Okay, we sing the national anthem. नेशनल एंथम जब हम गाते हैं, अपना राष्ट्रगान गाते हैं, तब भी आप देखो कि सब उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं. वी ऑल स्टैंड स्टिल दैट टाइम विद द सेम पैशन, और उतने ही जोश में उसको गाते भी हैं. दिस शोज आवर यूनिटी.
ये क्या बताता है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं. सो ये हमारी यूनिटी को शो करता है, विच नो वन कैन ब्रेक. कोई इसको तोड़ नहीं सकता है. Therefore, the phrase unity in diversity is justified. पहले डाइवर्सिटी को आपने डिस्क्राइब कर दिया, फिर यूनिटी को डिस्क्राइब कर दिया, दोनों को मिला दिया तो आपको समझ में आ गया कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी होते हुए भी we all are united. Okay, so this way you can also explain or you can write the same answer also. If you have understood, then it is okay. Have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, the second part of the question. Now, see, what do you think Nehru is trying to say about Indian unity? Because Jawaharlal Nehru, he framed this phrase. उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया को नाम दिया था. ठीक है, तो नेहरू जी यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहकर क्या बताना चाहते हैं, ये पूछा जा रहा है कि what do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India. उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया. द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू. ओके, सो उनकी इस बुक में यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के लिए लिखा गया है. अब ये पूछा जा रहा है कि नेहरू जी ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही रोट दिस. ओके, ऐसा लिखकर वो क्या बताना चाहते हैं इंडिया के बारे में? नाउ कमिंग टू दिस पोर्शन, लेट अस सी. नेहरू हैज रिटन इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. Now, in the second chapter, I told you that there is no particular religion of our country. हमारी country का कोई particular official religion नहीं है. हम secular country को belong करते हैं. India is a secular country. Okay. अब ये जो है इसमें उन्होंने बताया अपनी बुक में, जब उन्होंने लिखा कि डाइवर्सिटी है इंडिया में, that time he explained about it. उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हुए क्या बताया कि ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है. क्या है ये सब? तो मैम आप बता देंगे कि क्या बता रही थी? नेहरू जी ने जो कुछ भी कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि जो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, ये हमारे अंदर तक बसा हुआ है. हमें सभी को पता है कि इंडिया में वैरायटी है. इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं. ओके, द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम. नाउ वी नो दैट people around us, they used to follow different customs, they used to follow different belief. उनके धर्म अलग है, उनकी जाति अलग हो सकती है, उनके काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, और हम उन सबको देखकर ये नहीं कहते कि नहीं तुमको हमारे जैसे ही काम करना होगा. ठीक है, हमने कभी किसी को रोका नहीं, किसी ने हमें नहीं रोका है कि हमको उनके जैसे काम करना होगा या उनकी चीजों को फॉलो करना होगा, और ना किसी ने हमको रोका है कि हमें उनके जैसा करना है. ठीक है, तो हम में क्या है? टॉलरेंस है, एक दूसरे को सहन करने की शक्ति है. वो जैसे भी हैं हम उनको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं. वी एक्सेप्ट देम एज दे आर. ठीक है, जैसे हैं वैसा ही एक्सेप्ट करना हमको बताता है कि हम टॉलरेंट हैं, हम सहनशील हैं, हम दूसरों को सहन कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, और हम उसको हमेशा एक्सेप्ट करके ये बताते हैं कि तुम भी यहाँ रह सकते हो और तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो. तुम अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को, जो चीजें होती है उसको वैसे ही फॉलो कर सकते हो. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट इन इंडिया. तो इसलिए हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, पहचानते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, एंड वी एनकरेज देम ऑल्सो. हम उनको प्रोत्साहित भी करते हैं. He means that when one ponders over it deeply, when we see deeply inside it कि हमारी कंट्री में क्या क्या है, one finds that India is not only united, but its people also know how to accept other customs and beliefs.
जैसा अभी मैंने बताया कि वी पीपल टॉलरेट ईच अदर, हमको पता है कि दूसरा हमारा जो फ्रेंड है या हमारा जो पड़ोसी है, दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बिलीव्स, ठीक है, ईश्वर की पूजा करने का तरीका उनका अलग अलग है, बट स्टिल दे आर लिविंग टुगेदर, वो एक साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो नेहरू जी इसलिए इस चीज को इतना ज्यादा समझकर उन्होंने इस बात को लिखा, क्योंकि उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, फील किया कि इंडियंस ऐसे ही है, इंडियंस में ये चीजें नहीं है कि तुमको ऐसा नहीं करना है या तुम मेरे जैसा करो, कोई किसी को रोक नहीं सकता, सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और सबके साथ में खुश रहते हैं। दैट इज व्हाई ही कॉइंड दिस फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड ही बिलीव्ड इन इंडिया, ही बिलीव्ड इन दिस कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है इंडिया में, इसीलिए उन्होंने मैम यस मैम लेकिन यहाँ पे झगड़े वगैरह भी तो होते हैं इंडिया में बहुत सारे। हाँ, दैट डे somebody asked this same question, नो, कि फिर भी ऐसा होता है, और मैंने इसका जवाब दिया था कि दो चार लोग हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि सोसाइटी एक जैसी नहीं होती है, सम आर गुड एंड सम आर बैड ऑल्सो, किसी की थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी हो सकती है, कोई बहुत ही सेल्फिश हो सकता है, कोई दूसरों की हेल्प करना ज्यादा अच्छा समझता है, कोई सोचता है कि सिर्फ मैं अपनी हेल्प करूं। सो देयर इज वेराइटी ऑफ थिंकिंग इन दिस सोसाइटी, इसीलिए हम सब यूनिक हैं, वी आर नॉट कॉमन, वी आर यूनिक। इसलिए कुछ एक लोगों की वजह से हम हाँ मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। माय वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। सी No, जिसके ma'am. यहाँ नो मैम। नो मैम। जस्ट वेट, जिसके यहाँ पे भी अगर लग रहा है, प्लीज अपनी डायरेक्शन को हल्का सा चेंज कर ले, चेंज योर डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर सिस्टम ऑल्सो। मैंने भी चेंज किया, थोड़ा सा इधर उधर मैं भी कर लेती हूँ, अपने कंप्यूटर को हिला लेती हूँ, तो यू कैन ऑल्सो चेंज योर डायरेक्शन, यू कैन ऑल्सो चेंज दिस डायरेक्शन ऑफ योर सिस्टम ऑल्सो। आपका जो सिस्टम रखा है, जिसपे भी आप अटेंड कर रहे हो, चाहे लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है या फोन है, आप उसके भी पोजीशन को चेंज कर दीजिए, हल्का सा चेंज करोगे तो यू विल गेट माय वॉइस क्लियरली। ओके, दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड बाय ऑल, shall I proceed further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now underline the line in the poem sung after the Jallianwala massacre, which according to you reflects India's essential unity. Now this is the whole poem which is written in your book, okay, but we have to underline that particular line in which it is said that this line is essential for unity of the, which reflects the unity of the country. Now this is the poem, and you will find that in that poem there is this line, oh friend, the blood of Hindus and Muslims flows together today. ओके, जालियांवाला मैसेकर, जालियांवाला हत्याकांड के बारे में आप सभी को पता होगा कि इट इज इन पंजाब, और जब ब्रिटिशर्स थे और वहां पे जब एक बार कोई गैदरिंग हो रही थी जिसमें कि लोगों को संबोधित किया जा रहा था, दैट टाइम जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ओपन फायर किया था वहां पे, सैंडर्स के उसमें रिप्रेजेंटेटिव में उसके ऑर्डर फॉलो किए थे, और उन्होंने उस पूरी गैदरिंग पे चारों तरफ से सारे जालियांवाले में बहुत सारी जालियां हैं, इसलिए इस बाग का नाम क्या है, जालियांवाला बाग। ठीक है, जालियांवाला बाग इसलिए इसका नाम है बिकॉज चारों तरफ उसकी जालियां थी। ठीक है, सो जालियांवाला बाग के अंदर जो गैदरिंग हो रही थी, नहीं नहीं नहीं, बनाई हुई थी, बनाई हुई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सारे गेट्स बंद कर दिए और एक पतला सा रास्ता सिर्फ उन्होंने खोल के रखा, और वहां से पूरी सेना अंदर आई ब्रिटिशर्स की, और उन्होंने पूरी गैदरिंग को, जो कि बिजी थे अपने लीडर को सुनने में, उनको ओपन फायर करके वहीं पे गोलियों से भून डाला। ठीक है, तो उसमें सारे लोग जब इधर उधर भागने लगे कि दरवाजा कहाँ है, यहाँ है, वहां है, हर गेट बंद था और सारे मारे गए लगभग। तो उस समय में ये बताया गया कि उस बात को अगर देखा जाए कि अगर हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को अगर देखें, तो क्या जब उनका ब्लड
हिंदूज एंड मुस्लिम्स का ब्लड जब बहा वहां पे, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, मैसेकर हुआ वहां पे, तो क्या हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि हिंदुओं का खून कौन सा और मुस्लिम्स का खून कौन सा है? नो मैम। नो मैम। तो इसलिए ये एकता को साबित करता है कि जब हमारा ब्लड बहता है तो यू नो कैन मैम। मेक इट आउट कि विच ब्लड इज योर्स। अगर हमारा खून बहता है और किसी और का भी खून बह रहा है, आपकी बॉडी के पास है, तब तक तो आपको समझ में आता है कि यस दिस इज माय ब्लड। बट इफ इट इज मिक्स्ड विथ समबडी एल्सेस ब्लड, तो आप यू कैन नॉट मेक इट आउट कि दिस ब्लड इज योर्स और योर फ्रेंड्स ब्लड। ठीक है, बहुत से लोगों का ब्लड मैम डार्क होता है, मैम लाइट होता है। तो ऐसे आपको पता है ना कि ब्लड ग्रुप्स होते हैं, बट अगर आप नेचुरली नॉर्मली ब्लड को देखोगे, यू वोंट एबल टू मेक इट आउट कि किसका ब्लड कौन सा है, आप पहचान नहीं सकते ब्लड को। ठीक है, तो ये इस पोम में जो लाइन लिखी हुई थी, ओ फ्रेंड द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे, दिस शोज द यूनिटी ऑफ इंडिया। सो यू हैव टू राइट ओनली दिस लाइन, okay, not the complete poem. Got it? मैम ओनली ओ फ्रेंड वाली मैम। हाँ, only this line. Okay. Yes, ma'am. Next one. These only 4 questions are there in your book. Okay, which you need to do. Now these are multiple choice questions. Let us see. If you wish, you can do, so that you'll be able to prepare for your test also. Okay. मैम वन क्वेश्चन इज लेफ्ट। हाँ, last one, that is general question, which is not to be written down in the notebook. Okay. So leave that question. Okay, go through the question, but do write in the copy. Sameer though thought Sameer Ek did not know which language? हिंदी मैम, हिंदी हिंदी मैम हिंदी। Because Sameer Ek was, yeah, Sameer Ek was educated, Sameer though was uneducated. So when Sameer though saw Sameer Ek, he thought that Sameer Ek is not knowing Hindi language. Though Sameer was educated and he was going to school, he study Hindi also. Sameer Do's family lived in which मेरठ 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 दिल्ली। मैम मेरठ which of yes Meerut. Which of these not an example of inequality? Inequality means equality. Okay, casting the vote. मैम vote of electing government. Okay, मैम टेस्टिंग द वोट ऑफ electing government. ठीक है, इससे पता चलता है कि equal. Which of these is not a reason for diversity? Sorry, F type हो गया, T होना चाहिए यहाँ पे. मैम कास्टिंग द वोट फॉर इलेक्टिंग गवर्नमेंट मीन्स कास्टिंग अ वोट फॉर इलेक्टिंग गवर्नमेंट मतलब सरकार बनाने के लिए अपना वोट देना. ए वाला. ओके, ये इनइक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी का एग्जाम्पल है. दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, बट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी, दैट ऑल द पीपल दोज हु आर 18 years and above age, they are having the right to cast the vote, to give the vote for electing their government. ओके, अपनी सरकार चुनने का अधिकार उन सभी को है और वो वोट दे सकते हैं. ओके, तो ये इक्वालिटी है. वेदर वो गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, इट डजंट मैटर एट ऑल. ओके, इनइक्वालिटी का मतलब होता है भेदभाव करना. पर ये जो है सरकार ने ये सबको अधिकार दिया है, जिसमें हम सबको वोट देने का अधिकार है. यस. ओके, नेक्स्ट वन. Which of these is not a reason for diversity? History of a region, habitat of a reason, habitat of a person. मैम B. Habitat of a हैबिटेट ऑफ person. मैम हैबिटेट ऑफ मैम दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन Yeah, beta. Ladakh is a desert in the state. जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर दूसरा स्टेट हो गया है। हाँ. Yes. मैम वो अब जम्मू कश्मीर में नहीं है मैम, वो अलग हो गया है। Ladakh. मैम जम्मू एंड Ladakh.
लद्दाख की बात कर रहे हो? लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में ही तो है ना, कि नहीं? यस मैम जम्मू एंड कश्मीर में ही है। It is, हाँ, it is. मैम जब मोदी जी गए थे लद्दाख में। हाँ, चलो next is fill in the blanks. Let us see. The caste system is a form of, नीचे देखो, इनइक्वालिटी the caste system is a form of inequality. कास्ट से हमको ये पता चलता है कि वो हमारे बराबर नहीं है और हम इसलिए उससे भेदभाव रखते हैं, उसको इनइक्वल समझते हैं, बिकॉज the other person is not belonging to our caste. If inequality comes when a person does not have access, असमानता कब आती है? जब हम किसी को बराबर नहीं समझते, when we don't resources का क्या होता है? What is the meaning of resources? मैम हाँ, जिनसे पैसा कमा सकते हैं, ऐसी चीजें, ठीक है। रिसोर्सेस का मतलब होता है जो ऐसी चीजें हैं जिनसे वो अपनी अर्निंग बढ़ा सकता है, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकता है, वो रिसोर्सेस, ठीक है। ये रिसोर्सेस पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, दूसरी चीजें हो सकता है, ठीक, कोई भी रिसोर्स हो सकता है वो। A country's customs, religion, constitute its कल्चर culture. देश की संस्कृति जिसको हम बोलते हैं, वो संस्कृति किससे बनती है? हमारे यहाँ के रीति रिवाजों से, हमारे यहाँ के धर्म से, ठीक है। ये पीछे से कौन बोल रहा है इस तरीके से बेटा? दिस इज क्लास, ठीक है। जो भी है, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द क्लास बेटा। इफ यू डोंट वांट टू, जस्ट लीव द क्लास एंड मूव आउट। A country's customs, religions, arts and history constitute its culture. Okay. किसी देश की संस्कृति किससे बनती है? इन सारी चीजों से, किसी एक चीज से नहीं बल्कि सारी चीजें होती हैं, तब हमारा वो कल्चर बनता है। People traveled in search of न्यू लैंड्स एंड पीपल। In the history, first chapter of the history, we have read about this. People traveled in search of new lands and people to meet other people. Okay, so they traveled long distances. When people travel to other places, dash of cultures take place. See? इंटरमिक्सिंग। Yes, इंटरमिक्सिंग। जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तो कुछ उनकी चीजें ले लेते हैं और कुछ अपनी चीजें उनको दे देते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी वी लर्न मेनी मोर थिंग्स एंड द अदर पीपल आल्सो यूज्ड टू लर्न मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम अस। ओके, तो इस तरीके से क्या एक नया ही कल्चर डेवलप हो जाता है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है, जो हमारा भी नहीं है उनका भी नहीं है, कुछ नया क्रिएट हो जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग। हैबिटेट इज एसोसिएटेड विद द जियोग्राफिकल एरिया, जिस जगह पे आप रहते हैं उससे रिलेटेड होता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, भूगोल से रिलेटेड होता है, हमारी धरती से रिलेटेड होता है, उस एरिया से रिलेटेड होता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया वी यूज टू लिव आवर लाइफ। जिसके यहाँ पे जैसा ज्योग्राफी होता है, हम वहाँ का खाना पीना या कपड़ा पहनना धोना या जो भी चीजें हैं हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो सोचें कि हमको सरसों का तेल खाना है, ठीक है, हमको अपने खाने में नारियल नहीं चाहिए, तो उनके यहाँ तो नारियल ही उगता है, तो वो नारियल के अलावा और कोई मस्टर्ड सीड्स, दे वोंट गेट मस्टर्ड सीड्स इजीली, ठीक है। तो इसलिए वो वहां के खाने में, हर एक खाने में खाने के लिए लगाने के लिए सब में नारियल तेल का यूज करते हैं और नारियल का यूज करते हैं। बट सेम चीज आप सोचो कि एमपी में हो जाए, उत्तर प्रदेश में हो जाए, इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज वी डोंट गेट मच ऑफ कोकोनट्स हियर, वी कैन नॉट ग्रो कोकोनट्स, ठीक है। ऐसे ही है, उत्तर प्रदेश वाले लोग अगर सोचे कि हमको कोकोनट चाहिए, हम मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करेंगे, तो दे वोंट डू दैट। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ कोकोनट, दे कैन नॉट ग्रो देयर। तो इसलिए जो हमारी ज्योग्राफी है वो डिसाइड करती है कि हमको कैसे लाइफ रहना है, कैसे लाइफ में रहना है, कौन सी चीजों को फॉलो करना है, कौन सी चीजों को अडॉप्ट करना है, और अकॉर्डिंगली वी यूज टू अडॉप्ट
जहां हम जैसी चीजें अवेलेबल होती हैं, वी यूज टू लिव अकॉर्डिंग टू दैट एरिया. सो दैट इज बाय ज्योग्राफिकल एरिया जो है हैबिटेट से एसोसिएटेड होता है, रिलेटेड होता है. एसोसिएटेड मीन्स रिलेटेड. ओके. Now, both Kerala and Ladakh, these two areas, these two regions, we have read in the first chapter how they are different from each other and how they are similar to each other. Though they are one in extreme north and one is in extreme south, still both are similar in one or the other way. अब ये कौन सी चीजें थी जो दोनों जगह कॉमन थी, वर इन्फ्लुएंस्ड बाय Chinese and Arab. Chinese and Arab people. So these people were influenced by both type of communities. साइड में मैम अरेबियन सी है इसलिए. किसके? केरला के अरेबियन सी है. Arabian Sea. Okay. A British general opened fire on a public meeting in जालियांवाला बाग. Jallianwala Bagh. April 13, 1919. This was the day of Baisakhi. People were they were very excited being Baisakhi that day. Baisakhi के दिन उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है. That day, the British general opened fire on a public meeting. मेन फेस्टिवल होता है अभी भी है जलियांवाला बाग. Yes, बेटा, जब आप जाओगे वहाँ पे क्या जहाँ अभी भी उनका खून पड़ा हुआ है क्या? खून तो नहीं दिखेगा, बट यू विल इम्प्रेशंस ऑफ बुलेट्स. आपको ना जो गोलियों के निशान के दाग दिखाई देंगे, और वो एक वेल भी दिखाई देगा बीच में है, जिसमें लोग दौड़ते दौड़ते बहुत सारे लोग गिर गए थे क्योंकि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और बहुत बड़ी गैदरिंग थी. एंड दे रन इन मीन्स टू सेव देयर लाइफ, अपनी अपनी जान बचाने के लिए व्हेन दे रन फ्रॉम दैट प्लेस, तो वो सबके सब कुएं में पकड़ गए. हाँ, it is still there, you can see that. सारे हिंदू इकट्ठे जब पंजाब में है वो. in Punjab. Okay. The last one is The Discovery of India is a book written by जवाहरलाल नेहरू. Pandit Jawaharlal Nehru. Okay. So these are there in your book itself. Okay. आपके बुक से ही है ये lines. State whether each of these statement is true or false. All Indians share the national anthem. True. All Indians have the same national language. False. True. What is our national language? Hindi. What is our national language? Hindi. Yes. Hindi. All Indians speak the same language. Hindi. Do we speak the False. same language? False. False. We have our own language. Pandit Nehru was the first president of India. False. 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 No, false. क्या थे फिर वो? Prime Minister. Ma'am, Prime Yes. Minister. Yes, ma'am, Prime Minister. Was the first of independent India, free India. Caste system is an example of diversity. Yes or no? False. True. Ma'am, no. Example of inequality. Just now we have read. Inequality. Kerala and Ladakh are in different parts of India. True. Where is Kerala located? In which side? In which direction? South. And Ladakh is located in south. Ladakh? North. Very good. So they are in different parts of the country. Okay. The geography of Ladakh allows cultivation of spices. तो कहाँ स्पाइसेस होते हैं? स्पाइसेस कहाँ पे होते हैं? केरला में. ओके. स्पाइसेस कहाँ ग्रो होते हैं? कल्टीवेट किए जाते हैं. इट इज इन केरला. लद्दाख में, हाँ, इट इज लद्दाख तो कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है.
यहाँ पे केवल रियरिंग होती है। किसकी रियरिंग होती है? शीप रियरिंग। और ये पश्मीना वूल जो मिलता है वो यहाँ पे होता है, और वहां से ये पूरे कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जाता है। ओके, extra questions again. See, give an example of diversity in India. You can write anything. Okay, the example of India living in different parts. Ma'am, we are different types of clothes. Yes, any one example you can write 2, 3. Okay, beta. Yes, ma'am. Eating food. If you wish, beta, if you wish, you can write so that you will be able to prepare for the exam. क्योंकि एग्जाम में आपको कोई छूट नहीं है कि बैक के ही क्वेश्चंस आएंगे, बैक एक्सरसाइज आएगी. आई कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर इन द बुक. Okay, questions can be asked from anywhere in your chapter, from the chapter. So it is recommended to go through the chapter. वाले क्वेश्चन को हाँ, ऐसे ही लिख देना. गिव एन एग्जांपल, गिव एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्सिटी, ऐसे डाल देना. ओके, मैम आंसर आंसर क्या आंसर बेटा? कैसे लिखना है? आप जो भी लिख सकते हो. देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्सिटी. फॉर एग्जांपल, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वी फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स. ऐसे ओके मैम. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मैम ये फिल इन द ब्लैंक्स बुक में ही करना है. बुक में कर लेना, वो तो केवल आपकी जानकारी के लिए बेटा. इट इज जस्ट फॉर योर मींस रिवीजन. इस पिक्चर को जो आपने दिखा स्क्रीनशॉट ले लिया. You can write. If you wish, you can write all the questions. If you wish, you can write selected questions. Okay, it is up to you. I will not compel you. Okay. Give an example of unity and diversity among Indians. Unity and diversity among Indians. All Indians share the same national pride of having India as their motherland. ठीक है. हम सब एक क्यों हैं डाइवर्सिटी होते हुए? कि हम इंडिया के रहने वाले हैं. Our country is one. Okay. So your language is, you can use your own language, that will be welcomed by me. Why did Samir, the paper boy, why paper boy? Because he used to sell papers, newspapers. Think the author did not know Hindi. Who was the author? The Samir Ek. Samir, though the paper boy thought the author looked like a foreigner because he was from well-to-do family, बहुत rich family से belong करता था, और वो उसको foreigner जैसा दिख रहा था, smart दिख रहा था. So he thought कि समीर एक को हिंदी नहीं आती है. He could only speak English. Okay. Why was Samir though tense? Samir though was tensed because riots had broken out in Meerut where his family lived. उसकी फैमिली कहाँ रहती थी? मेरठ में. और वहां पे क्या हो गए थे? दंगे हो गए थे, और इसलिए उसको टेंशन थी कि उसकी माँ, उसके जो परिवार वाले हैं, सब मेरठ में थे. Give one example to show why diversity is important in our lives. Earlier also we have done the same question. कि what does diversity add to our life? Same question. It is same question, but it is in different manner. So, if एक जैसा अगर diversity नहीं होती हमारी लाइफ में तो क्या होता? लोगों को बात करने के लिए, सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है ना. सबका सिमिलर चीजें होती तो the writers would lack innovation. We will not able to know about the culture and traditions of other people. हम लिमिटेड हो जाते है ना. हमारे पास अवेयरनेस कम होती, हमारी नॉलेज नहीं होती. गिव वन वे इन विच केरला एंड लद्दाख आर डिफरेंट. तो कल्टीवेशन में केरला है और लद्दाख ग्रोइंग वूल. ठीक है. इसके अलावा यू कैन राइट केरला इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया, whereas Ladakh is situated in the north of India. It is in the north, it is in the south. Have you understood? Cherry? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes ma'am. What is Ladakh known as? Ladakh is known as Little Tibet. Tibet. Okay.
It is also in the book. Okay, if you go through the chapter, you will find such questions there also. Mention the different religions that are practiced in मैं Kerala. सुन नहीं In पाई Kerala. थी, अभी कॉल आ गया था. Okay, no problem, beta. The people of Kerala practice many different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism. So many more people. Mainly the people in Kerala, they follow Christianity. Okay. But the people of that area, they follow Hindu religion also, and few people they are from these religions also. How can you say that the history of Kerala and Ladakh has been similar cultural influences? अभी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि both were having the चाइनीज एंड व्हाट इज जुडाइज्म? चाइनीज और अरेबियन ट्रेड करने आए थे. yes, good. मैम व्हाट इज जुडाइज्म? ये Judaism. यस मैम. हाँ, इट इज अ रिलीजन बेटा, माइनॉरिटी का रिलीजन है, आपकी कंट्री में बहुत कम देखने को मिलता है. ठीक है. India is a country of many diversities. Explain giving examples. Now, India is a country of many diversities. Now, we have discussed about the diversity a lot. हमने बहुत चर्चा की है इसके बारे में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमको पता है. Explain giving. If you are not asked to give examples, you have to give examples. Mind it. Okay, always remember. जहाँ पे एग्जाम्पल्स देकर हमको समझाना है वहां समझाना ही है. अगर आपके क्वेश्चन में नहीं भी दिए, then also you have to write example. Now, one of the special feature of India is that it is a country of many diversity. So, what are these examples? We speak different language, we eat different food, we celebrate festivals, we practice different religions, we wear different types of clothes. Okay, so this way you can write the answer of this question. India is a country of diversities. Explain. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. ठीक है, इंडिया की डाइवर्सिटी जो है वो हमेशा एक स्ट्रेंथ की तरह काम करती है. हम लोग कभी भी कटते नहीं हैं, अलग नहीं होते एक दूसरे से, बल्कि हम सब मिलकर मुसीबत के समय एक साथ मिलकर एकता के साथ में लड़ते हैं. और ये कैसे प्रूव हुआ? ये प्रूव हुआ जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए और हमने उनसे लड़कर उनको दूर भगाने की कोशिश की. देन ओनली वी केम टू नो दैट वी पीपल आर यूनाइटेड. People from different religion, languages and cultural backgrounds came forward together to oppose the British. They united against the British for the same goal and objective, that is to send them out from India. तो हम उनके खिलाफ लड़े तो एक बने और उनको बाहर भगाने के लिए हमने एक साथ मिलकर काम भी किया. So this shows that India, being diverse country, the diversity is also source of its strength. Now this is your last question. How are history and geography tied in cultural life of a region? History और geography एक जगह के कल्चर के लिए कैसे जुड़े हुए रहते हैं? Explain giving examples of Kerala and Ladakh. Now, Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features. We know that Ladakh is yes बेटा, कॉपी में लिखना हाँ है. लिख लेना. यस मैम, ये सारे लिखने हैं. हाँ, मैंने आपको बताया कि if you wish you can write all the questions. If you don't want to write, then write down few of them. Okay, but back answer questions which we have discussed, that you all have to write. Okay. Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, because Ladakh is the coldest region, whereas Kerala is the coastal region. Okay, so दोनों की geography क्या है? अलग अलग है. एक कोस्ट में है, समुद्र के किनारे, एक पहाड़ों पर है, बहुत ठंडा इलाका है और कोल्ड डेजर्ट है. It was the geography of Kerala. केरल की जो ज्योग्राफी है, जो उसकी जमीन है, वो क्या अलाउ करती है, वहां की क्वालिटी कैसी है, वहां के क्लाइमेट कैसा है, कि वहां पे स्पाइस हम ग्रो कर सकते हैं, मसालों की खेती होती है. सो यू विल गेट
Like we get here this guava tree, mango tree. In our places, there we will find the trees of spices. वहां हर एक के घर में स्पाइसेस के ट्री होते हैं. किसी के यहाँ तेज पत्ते का होगा, किसी के यहाँ इलायची का होगा, किसी के यहाँ लौंग का होगा. So this type of trees you will get there in every house. So far Ladakh is concerned, its special geographical location flourished the business of wool collection among the Ladakhi people. जबकि हम लद्दाख के बारे में देखें, वहां ऐसी खेती नहीं हो सकती, वहां पे फार्मिंग नहीं हो सकती, बट वहां की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो वूल के कलेक्शन के लिए इजी है. तो ये चीज केरला में नहीं हो सकती, केरल की चीज यहाँ नहीं हो सकती. The people of Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell it to the traders from Kashmir. So ये पूरे इंडिया में और पूरे इंडिया के बाहर सारी जगह ये वूल, पश्मीना वूल जो है वो जाता है. The history of both the region has been affected with similar cultural influences. Both the regions were influenced by Chinese and Arab traders. Thus, we can say the history and geography are often tied in the same cultural life of a region. Okay, now these are the questions. This we have already done. We need not to worry about these questions. How do we explain diversity? Again, revision of that. Okay. 3 ways of Kerala and Ladakh. मैम ये वाले नहीं लिखने, ये बेटा, बट एक क्वेश्चन आप कोई भी करोगे, यू विल एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. ओके, यहाँ पे सिर्फ इसके हिसाब से दे दिया है कि फूड कौन कौन सा खाया जाता है दोनों जगह पे, क्लॉथ्स कैसे पहने जाते हैं और क्या नहीं करना है ना. ठीक है, आप देख सकते हैं इसको भी. सी द फूड पीपल ईट इन लद्दाख, व्हाट डू दे ईट? They generally eat meat and milk products, cheese and butter, because they don't have agriculture. Little agriculture, farming नहीं होती है, तो वहां के लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड खाना पड़ता है. ठीक है, बट केरला में क्या है, केरल का लैंड कोस्टल रीजन है, पानी की कमी नहीं है, सो दे हैव फर्टाइल लैंड देयर. और क्लाइमेट जो है वो राइस के ग्रोथ के लिए अच्छा है. पैडी ग्रोथ होती है, पैडी को ग्रो कर सकते हैं. दे कैन ग्रो पैडी इजीली, राइस इजीली, बिकॉज ऑफ द प्लेंटी ऑफ वाटर. एंड ऑल्सो they have fish and vegetables also to eat. So they are dependent on all these things, whereas the Ladakhi people, they only depend on animals and animal products. Okay. Same way clothes, because Ladakh is a cold region, so they wear woolen clothes, whereas Kerala is a humid place. ह्यूमिडिटी रहती है वहां पे, चिपचिपाहट रहती है हमेशा, क्योंकि समुद्र के किनारे है. तो वहां के लोगों को कॉटन क्लॉथ्स अच्छे लगते हैं, दैट टू व्हाइट कॉटन और लाइट कलर क्लॉथ्स. ओके, जिससे कि वो अपने आप को गर्मी से बचा सके. जो राइटर है उसने यही वाले जो एग्जांपल्स के लिए लद्दाख एंड केरला के, ये बताने के लिए कि दोनों जगह अलग अलग है. आपका जो एक क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आप इनके अलावा कोई 2 एरियाज लो, चाहे ईस्ट वेस्ट का ले लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का ले लो, एक नॉर्थ का, एक ईस्ट का, एक वेस्ट का या ईस्ट का, ऐसा भी ले सकते हो आप. आप जब करोगे तो आप अपनी जानकारी इकट्ठी करने के लिए अलग एरिया लोगे. ये बुक में अलग अलग बताने के लिए लिया है कि कैसे डाइवर्सिटी हमको अफेक्ट करती है. ठीक है, डाइवर्सिटी किस में हो सकती है, क्योंकि नेचर ही अलग अलग है. नेचर जो बना हुआ है, बनावट है धरती की, वही अलग अलग है. एक जगह पहाड़ है और एक जगह समुद्र है, तो पहाड़ वाली चीज समुद्र के पास नहीं हो सकती और समुद्र वाली चीज पहाड़ के पास नहीं हो सकती. ठीक है, तो सबकी अपनी क्वालिटीज हैं. यही शो करने के लिए 2 एक्सट्रीम एंड के चीजों को लिया गया है, 2 एक्सट्रीम लोकेशंस ली है. एक एक्सट्रीम नॉर्थ है तो एक एक्सट्रीम साउथ है. ठीक है, एक पहाड़ का है तो एक कोस्टल रीजन है. तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे डाइवर्सिटी आती है. ठीक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है. सिर्फ समझाने के लिए हमें चैप्टर में कैसे हमारे जो रीजन्स हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट अलग है, वहाँ की चीजें अलग है, वहाँ पे एग्रीकल्चर में जो चीजें होती है वो अलग अलग है, इसलिए हम सब भी अलग अलग है. तो फॉर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी वी नीड टू नो दीज थिंग्स.
हम एक दूसरे से अलग इसीलिए हैं बेटा, है ना। आप सोचो कि कश्मीर के लोग गोरे हैं, या कश्मीरी सोचे मैं गोरा हूं, अगर ये भारतीय हो तो इसको भी गोरा होना चाहिए, तो इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि सारी जगह पहाड़ या ठंडा मौसम नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे ठंडी नहीं होती है, जहाँ पे गर्मी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वहां के लोग बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको समझाने के लिए दी गई हैं कि क्यों हम लोग इतना अलग अलग हैं एक दूसरे से, ठीक। सेम वे द वर्क दे डू, लद्दाख के लोग they used to rear or domesticate what sheep for wool, ठीक है। whereas when you see about the people living in Kerala, you will find that these people, they used to grow number of spices like pepper, cloves, cardamoms. It is spices that made this region an attractive place for traders. So Kerala को spices का प्लेस भी कहा जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्पाइसेस ग्रो होते हैं, ठीक है। इसके आगे भी कुछ है नहीं, सायरा, ठीक है। कमिंग बैक, मैम। सायरा मैम। सायरम बेटा, लेट अस डू शांति, हाय मैम। लेट अस डू शांति पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। कम ऑन। ओ शांति शांति शांति। सायरम बेटा, now you can leave the meeting. सायरा